Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Sound heard by human ear. The human ear is a sensitive and complex organ using which we are able to hear sounds from our environment. A human ear can sense the minute pressure variation in the air if the frequency of the sound waves is between 20 Hz to 20,000 Hz. अब हम देखेंगे कि ह्यूमन ईयर कैसे साउंड सुन सकता है। ह्यूमन ईयर जो है वो बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसकी वजह से बहुत सारी आवाज़ें सुन सकते हैं जो एनवायरनमेंट में पैदा होती हैं। सारी आवाज़ें सुन सकते हैं ईयर की वजह से। ईयर जो है वो माइन्यूट प्रेशर वेरिएशन है वो भी फील करता है, सेंस करता है, सुन सकते हैं हम। अगर फ्रिक्वेंसी जो है साउंड वेव्स की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो ह्यूमन ईयर उसको सुन सकता है। The three parts of the ear anatomy are the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear consists of the pinna, ear canal, and the eardrum. The eardrum is also called tympanum. The middle ear is an air-filled column that consists of three interconnected bones, malleus, incus, and stapes. The inner ear consists of cochlea, the semicircular canals, and the auditory hearing nerve. Figure 12.6 shows the internal and external structure of human ear. ईयर जो है वो 3 पार्ट्स से बना हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में पिना, ईयर कैनल और ईयर ड्रम होते हैं। ईयर ड्रम को हम टिम्फेनम भी कहते हैं। मिडल ईयर जो है वो एयर फिल्ड कॉलम होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है 3 बोन्स से, जिसको बोलते हैं मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। इनर ईयर में कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल होता है और ऑडिटरी नर्व होती है। फिगर 12.6 में हम देख सकते हैं इनर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ह्यूमन ईयर का। साउंड वेव्स एंटर द ईयर कैनल एंड मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम moves the tiny chain of bones in the middle ear. The last bone in this chain, the stape, vibrates the membrane window of the cochleae and make the fluid in the cochleae move. The fluid movement then triggers a response in the hearing nerve. The brain processes the information from the ear and lets us distinguish between different types of sound. साउंड वेव्स जो हैं ईयर कैनल में एंटर करते हैं और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम मूव करता है टाइनी चेन होती है बोन्स की मिडल ईयर में, जैसे लास्ट बोन है इस चेन की स्टेप्स, उसको वाइब्रेट करता है और उसका जो फ्लूइड है कोक्लाई का उसको मूव करता है। ये फ्लूइड मूवमेंट की वजह से जो हियरिंग नर्व है वो ट्रिगर होती है, वो शुरू हो जाती है और वो मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन तक जाने के बाद में ब्रेन डिस्टिंग्विश करता है कि किस टाइप की साउंड है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वी ऑल हैव हर्ड ऑफ द वर्ड इको। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स व्हेन सम पार्ट of the sound energy reflects or bounces back when they hit a solid wall is called echo. The rest of the sound energy is absorbed by the wall. Soft material objects such as a teddy bear reflect very little sound, whereas the hard objects such as solid brick reflect most of the sound. Figure 12.7. हमने वर्ड इको पहले सुना हुआ है, तो इसमें इको में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होते हैं। कुछ पार्ट जो साउंड एनर्जी का होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है हिट करके सॉलिड वॉल से, उसको हम इको कहते हैं। और बाकी जो साउंड एनर्जी है वॉल
एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सॉफ्ट मटेरियल जैसे टेडी बियर जो है बहुत कम साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हार्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे सॉलिड ब्रिक है वो ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे फिगर 12.7 में आप देख सकते हो। Understanding the reflection of sound waves is very important to build concert halls and auditoriums. Large auditoriums have reflective surfaces placed at the back of the stage to direct the sound to the audience. They also have reflective ceilings. The curved roof of a concert hall and curved reflecting surfaces reflect sound over a large area of the auditorium, figure 12.8. रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स का समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम बिल्ड करते हैं कंसर्ट हॉल और ऑडिटोरियम्स। लार्ज ऑडिटोरियम्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं स्टेज के पीछे साइड में, जिससे जो साउंड जो है वो ऑडियंस तक डायरेक्ट हो सके, पहुंच सके। और इनमें रिफ्लेक्टिव सीलिंग्स भी होती हैं, इनके कर्व्ड रूफ होते हैं कंसर्ट हॉल के, और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट कर सके लार्ज एरिया जो होती है ऑडिटोरियम में उसमें, जैसे आप फिगर 12.8 में देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स loudness, pitch and quality. Waves are also characterized by three basic quantities: amplitude, frequency and speed. Let us understand how the characteristics of waves are related to the loudness and pitch of sound. Characteristics sound के क्या होते हैं? Sound travel करता है wave form में और इसके characteristic हैं लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। वेव्स के भी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो अब हम समझेंगे कि कैसे लाउडनेस और पिच ऑफ साउंड एक दूसरे से रिलेटेड है। एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। द टर्म एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium from its mean position. Loudness of sound is related to the amplitude of the sound wave. The more the amplitude, louder is the sound. Figure 12.9. When we strike the string of a guitar lightly, we produce a sound. If the same guitar string is struck with a greater amplitude, the loudness of the sound heard increases. टर्म एम्पलीट्यूड उसको रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स का मीडियम में होता है उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लाउडनेस जो है साउंड का वो रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडर साउंड होगा। अगर हम स्ट्राइक करते हैं गिटार के स्ट्रिंग को लाइटली तो उसके साउंड प्रोड्यूस होगी लाइटली। अगर हम उसी को स्ट्रक करते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ में तो देखो तो उसका जो साउंड है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी एंड पिच। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 second is defined as frequency. Shrillness of the sound produced is determined by the frequency of a vibrating body. It is also explained with a term called pitch. The higher the frequency of vibrating body, the higher will be its pitch. Figure 12.10. Different frequencies of sound produced in musical instruments are nothing but the different notes. Frequency is measured in hertz and named after the scientist Heinrich Hertz. जितने ऑसिलेशंस होते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड के अंदर उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। श्रिलेंस जो है साउंड की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम उसको पिच भी कहते हैं। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की उतनी हायर पिच होगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, मतलब उसके नोट्स डिफरेंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर होती है हर्ट्स में। इसके साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्स के नाम के पीछे इसका जो यूनिट दिया गया है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्स दिया गया है।